So you're learning Java just for knowledge. You have it in your academics. Fourth year now, already it is done. Like third year, I mean, I guess in PPL or something, principles of programming languages. For ENTC also you have Java. Okay, okay, ठीक है, no problem. You have taken best decision. She is not having now, no? Or maybe like it is in DS along with data structures. Depends on IT or comp, no? Like, ठीक. Anyway, again, online student, one more time I'm asking. Please introduce yourself. You're from Gunjan. You are able to hear me? Gunjan and one more. Prasad is there. ठीक है. हाँ. Yes, yes. Now, initially we are taking basic. Then if we have some more students, then we will be taking another batch for advanced. Like. Now this batch is for basic Java. My core Java will be covering. And then if you want advanced also, we will start with that batch as well. Like in advanced Java, you'll be learning all web techniques like servlets, JSP, all that things like multi-threading, all that concepts you'll be learning in advanced Java. So basic Java and advanced Java both is there, but currently we are starting with basic. So you are interested in? You are interested in both, na? Like. Okay, no problem. One more is there. Tanmay also is there. Tanmay, Gunjan, you all can unmute and you can introduce. You all are from? No. No, I'm asking like what you're doing. First year, second year, third year. You're in third year engineering. Which branch? Okay, no problem. Good. Okay, so let's start with the course. Like, I'll give short introduction about myself. Okay, and then we will start with the syllabus. What all things will be covering, everything I'll tell you. Don't worry. So myself, Ajit More, I'm locally from Akurdi Pradhikaran only, and by qualification I am BE Computers, and I'm a software trainer from past 25 years. Like, from 1998, I'm into software training. 1998, I guess you were not born also, right? So more than 26 years, more than 25, 26 years, I'm into this software training. I'm teaching different courses of computers, even IT, comp, clear, to engineering. Then I'm for BCS also, BCA, I've taught their subjects also. Even for some post-graduation like MCS in MSc in computer science, masters in computer application, their subjects also I have taught, like mostly into programming languages. I've been teaching all the programming languages. Then I do freelance projects also for some companies also, and for final year students also. MCA, MCS, engineering student projects also I develop. I have published some books as well for data structures, even for Java and all. And along with programming languages, I teach some other add-on subjects like theory of computation, design analysis of algorithm, operating system design, system programming and all. Okay. And I was there for BCA syllabus design also. I've taken many faculty development programs. That too I keep doing. I go for value addition in many colleges. So all these are my different activities, like, and as a hobby, I teach Vedic maths. The Vedic maths, I don't teach it for revenue. As a hobby, I teach it. But main thing is programming, like, okay? So in short, I just told you about myself. Then we will start with our course. Now, I'll just give you overview what all things we'll be learning in core Java, like, okay? We will start with programming paradigms.
What do you mean by paradigm? What are different programming paradigms? Then we will compare with procedure-oriented and object-oriented programming. What is object-oriented coding, procedure-oriented coding? Then we will see some principles of object-oriented coding. We call it as pillars, like what is class, what is object, inheritance, polymorphism, encapsulation, all that terminologies. And then we will dive into Java. Like then in Java, we will be learning. In short, I'll just try to tell you the history of Java, how Java came into existence, like then features of Java. They are called as Java buzzwords. Okay. Then we will start with first Java program. I'll explain you in detail about how that first Java program completely works. And then the elementary coding will start, like what are identifiers, tokens, then keywords, operators, then what all control structure Java has provided, like for loop, while loop, do while loop, if else, switch case, all that in Java. Like. And then how to do object-oriented coding in Java, like classes, how to create a class, how to create object, constructors, constructor overloading, all. Then we will move to inheritance. Then we will see different concepts in inheritance like abstract class, abstract method, polymorphism, how to implement. All we will be covering. Like, okay? And abundant of exercises will solve, don't worry. Many exercises we will also solve. Many I'll give you as well. Okay, packages कैसे बनाने हैं खुद के, वो देखना है. Then we will be dealing with strings, how the string is created in Java and different string methods, वो हमें देखना है. फिर फाइल हैंडलिंग देखेंगे हम लोग, ठीक है. फिर थोड़ा GUI प्रोग्रामिंग कैसे करना है, हाउ टू क्रिएट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो उसमें मैं स्विंग का पैकेज सिखाऊंगा. फिर स्विंग पैकेज यूज करके विंडो कैसे बनाना है, बटन्स कैसे बनाना है, रेडियो बटन्स एंड ऑल, ड्रॉप डाउन बॉक्सेस, उसका यूज करके UI कैसे बनाओगे. UI मीन्स यूजर इंटरफेस. तो ऑल दैट, देन इवेंट्स कैसे हैंडल करना है. All these things we will be covering in our core Java concepts, like getting. And then if you are interested in learning many more things, like आपको multi-threading सीखना है, collections framework सीखना है, फिर आपको web development का कुछ सीखना है, तो then you have to go to advanced Java, like clear. फिर आपको advanced Java के course को आना पड़ेगा, ठीक है. तो first we will discuss about what do you mean by paradigm. Any knowledge, like any common sense means, ऐसा नहीं कि आपने बुक पढ़ के ही आना है या वॉट एवर, जस्ट एक कॉमन सेंस में आप क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज पैराडाइम, व्हाट डू यू थिंक पैराडाइम मीन्स व्हाट. ओके, हाँ, मीन्स यू वांट टू से इट्स अ पिरामिड समथिंग. Classification you want to say. I mean, you want to say anything which is classified and kept. कि ये main है, ये इसके sub category, ये sub category, like that. Okay. Anything else? Means she's saying कि classification. तो indirectly उसको बताना है कि किसी भी चीज को classify करना है. तो क्या? Okay, relatable. मैंने आप लोग एकदम ही गलत नहीं बोला है. Others, what do you think? No? Okay, related. She is also saying the similar thing. Paradigm, you can say it is a methodology of doing something. मैं कुछ भी चीज करना है तो उसके लिए एक क्या रहेगा, कुछ मेथोडोलॉजी है. गेटिंग. जैसे मॉम खाना बनाती है, यस और नो. तो फूड जब बनाते हैं तो फूड भी अलग अलग टाइप के होता है, तो हर एक का मेथोडोलॉजी अलग होता है ना. इफ इट्स अ साउथ इंडियन फूड तो द मेथोडोलॉजी इज डिफरेंट. जनरली साउथ इंडियन फूड फर्मेंटेड बेस पे रहता है, काफी चीजें फर्मेंट करके फिर करते हैं. इफ यू गो टू कॉन्टिनेंटल फूड या फिर आप थाई फूड लेते हैं, तो हर एक का एक मेथोडोलॉजी अलग है ना. गेटिंग. तो प्रोग्रामिंग में भी मेथोडोलॉजीज होता है. तो इन शॉर्ट पैराडाइम यू कैन से मेथड टू सॉल्व सम प्रॉब्लम और टू डू सम टास्क. तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है या कोई टास्क फॉलो करना है,
तो वो टास्क सॉल्व करने के लिए क्या रहेंगे, कुछ मेथोडोलॉजीज। तो उस मेथोडोलॉजी को हम क्या कहते हैं, दैट इज पैराडाइम। ओके, देन प्रोग्रामिंग के भी पैराडाइम्स रहेंगे। विल देयर बी मेथोडोलॉजीज फॉर डूइंग प्रोग्रामिंग एज वेल? यस, हर काम करने के पैराडाइम्स रहता है। एवरीथिंग, रियल लाइफ में भी आप जो कुछ करोगे, एवरीवेयर देयर विल बी व्हाट, मेथोडोलॉजी फॉर डूइंग इट। तो जैसे मॉम कुछ बनाती है तो शी ऑल्सो फॉलो सम रेसिपी, तो व्हाट टाइप ऑफ फूड शी इज मेकिंग, बेस्ड ऑन दैट द पैराडाइम इज डिफरेंट, लाइक गेटिंग। तो प्रोग्रामिंग के भी क्या होता है, पैराडाइम्स होता है, ठीक है। लाइक प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स, तो व्हाट यू कैन से प्रोग्रामिंग पैराडाइम, मेथोडोलॉजी फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम्स को डेवलप करने के भी अलग अलग क्या है, मेथड्स है, लाइक, ठीक है। तो यू कैन से अप्रोच और मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको, अभी ऑब्वियसली दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग है, नहीं तो आप कहोगे फिर मेरे रियल लाइफ का कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, गेटिंग। दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर कंसर्न्ड विथ प्रोग्रामिंग, या प्रॉब्लम्स विच आर टू बी सॉल्व फ्रॉम कंप्यूटर। ऐसे प्रॉब्लम जो किससे सॉल्व करवा के लेना है, कंप्यूटर से लेना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, लाइक। तो प्रोग्राम्स को भी सॉल्व करने के क्या है, मेथोडोलॉजीज है, तो उनको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम। अभी प्रोग्रामिंग के जो पैराडाइम्स होता है वो एक्चुअली दो ही कैटेगरीज में है। जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पेपर पढ़ा रहेगा, लाइक यू हैव स्टडीड इन थर्ड ईयर, तो यू माइट बी नोइंग ऑल दिस कंसेप्ट्स, ओके। यू शुड बी अवेयर ऑफ इट फॉर कैंपस इंटरव्यूज, लाइक कंपनीज जब आता है तो टेक्निकल राउंड्स के लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर ऑल वेरी बेसिक थिंग्स, लाइक गेटिंग। तो प्रोग्रामिंग के भी मेथोडोलॉजीज है, एंड प्रोग्रामिंग में दो मेथोडोलॉजीज होता है, दैट इज वन इज कॉल्ड एज इंपरेटिव कोडिंग एंड अनदर इज डिक्लरेटिव कोडिंग। इंपरेटिव प्रोग्रामिंग एंड डिक्लरेटिव। तो दुनिया भर के जितने भी लैंग्वेजेस आप देखोगे ना, any language you consider, either it is in imperative category or either it is in declarative, getting, means आप even HTML पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं HTML is not a programming language, getting, it is a language, but still वो एक क्या है, language है, getting। hypertext markup language बोलते हैं ना, तो it's a computer language, right? तो HTML लो, SQL, कुछ लोगों ने SQL भी किया रहेगा डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, तो SQL लो, C++ लो, any language you consider, it will come under any of these two category. One is imperative and another is declarative. हाँ, imperative के अंदर फिर सब कैटेगरीज किए रहेंगे, लाइक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वो उनके फर्दर कैटेगराइज हुए। गेटिंग, मैंने एक मेरा पेपर भी प्रेजेंट किया था एक 2-3 years बैक, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस, जिसमें मैंने 1950 से जितने लैंग्वेजेस है उनका पूरा हम लोगों ने वो एक स्टडी करके उसके ऊपर एक पेपर प्रेजेंट किया था। 1950 में जो फर्स्ट इंपरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया दैट इज फोर्ट्रन, एंड पहला डिक्लेरेटिव लैंग्वेज आया दैट इज लिस्प, एंड फिर कैसे इवोल्यूशन होते गया from 1950 till 2024, how the languages have evolved, getting, कैसे ह्यूमन में जैसे इवोल्यूशन हुआ है वैसे प्रोग्रामिंग में भी हुआ है। तो दो लैंग्वेजेस का कैटेगराइजेशन है, वन इज इंपरेटिव एंड अनदर इज डिक्लरेटिव। बट देन यू विल से व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंपरेटिव एंड डिक्लरेटिव। In case of imperative languages are also called as procedural या algorithmic, और ऐसे कह सकते हैं कि इंपरेटिव में व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एवरीथिंग प्रोग्रामर हैज टू स्पेसिफाई, मींस व्हाट आई एम सपोज टू डू एंड हाउ टू डू दैट, बोथ थिंग वी हैव टू टेल। मींस लाइक आई वांट टू डू जीसीडी ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का मुझे क्या कैलकुलेट करना है, जीसीडी। तो क्या करना है, कैलकुलेटिंग जीसीडी ऑफ टू नंबर्स, बट हाउ टू कैलकुलेट that also I have to tell. There is a Euclid method, है याद, कुछ 11th-12th में हुआ था, एक यूक्लिड मेथड रहता था कि वो जीसीडी कैसे निकालते थे, कि ए एंड बी का जो रिमाइंडर आएगा वो बी को दो, पुराना ए वापस, पुराना बी ए को देना है, और ये प्रोसेस रिपीट करते जाना है जब तक बी 0 नहीं होता। तो दैट इज द प्रोसीजर।
तो जीसीडी निकालने का भी एक क्या है, प्रोसीजर. तो हाउ टू फाइंड दैट एंड व्हाट टू फाइंड, बोथ थिंग हु हैज टू टेल, प्रोग्रामर. बट डिक्लरेटिव लैंग्वेजेस जो होता है ना, उसमें हमें सिर्फ बताना है क्या करना है. हाउ टू डू इज हिडन, या कोई और सिस्टम है जो एब्स्ट्रैक्ट है, हिडन है हमारे पास, जो वो सब कर ले रहा है. हमें सिर्फ क्या बताना है, क्या करना है. What I want to do, only that much I have to tell. How to do, you don't bother. There is a system which will take care of it. तो वो जाता है किस कैटेगरी में, डिक्लरेटिव. गेटिंग. तो आप कहोगे डिक्लरेटिव में कौन आता है, इंपरेटिव में कौन है. तो सी इज अ इंपरेटिव लैंग्वेज, बट वो प्रोसीजरल है. सी प्लस प्लस है, जावा है, वो भी इंपरेटिव में है, बट वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है. पीएचपी है, जावा स्क्रिप्ट है. हैव यू हर्ड अबाउट जावा स्क्रिप्ट? यस, ट्वेल्थ में भी कुछ लोगों ने किया रहेगा. ट्वेल्थ में जिनको आईटी वगैरह रहता है उसमें होता है. तो जावा स्क्रिप्ट है. जावा स्क्रिप्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज. कुछ लोगों को जावा नहीं अच्छा लगता है, बट उन लोगों को सॉफ्टवेयर में काम करना है, डेवलपमेंट में ही काम करना है. तो यू कैन गो विद दैट मर्न स्टैक. मीन्स आप लोग कौन सी लैंग्वेज पकड़ के भी आगे बड़ा करियर कर सकता है, ओनली बाय टेकिंग वन लैंग्वेज, दैट इज JavaScript also. JavaScript is also very famous, and 2024 में वो टॉप 10 लैंग्वेजेस में बैठता है. नॉट इवन टॉप 10 में, टॉप 3 लैंग्वेजेस में किसको बिठाया है, दैट इज JavaScript. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग दैट, you can learn that as well. तो JavaScript है, PHP है. Have you heard about PHP? PHP, JavaScript दोनों जाते हैं. इवन Python ले सकते हैं. ये सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में जाता है. तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये सारे बट आते किस कैटेगरी में है, इंपरेटिव. क्यों? क्योंकि इनमें हमें क्या करना है एंड कैसे करना है, दोनों हमें बताना है. एंड डिक्लरेटिव में मैंने जैसे बताया, यू जस्ट हैव टू टेल व्हाट टू डू, यू डोंट हैव टू टेल हाउ टू डू. इन दैट कम्स HTML. क्लियर? तो HTML में हमें सिर्फ बताना है कि भाई ये इसको बोल्ड कर. तो मैं बी टैग में, आई जस्ट राइट बी टैग, राइट और नो. मैं लिख देता हूं बी, फिर यहां लिख देता हूं मनोज चौधरी एकेडमी /B. राइट? बट इस MCA को बोल्ड कैसे करना है एंड ब्राउजर में दिखाना है, वो ब्राउजर देख लेगा. मुझे सिर्फ बताना है कि भाई इसको बोल्ड कर. हाउ टू डू दैट बोल्ड और हाउ टू डू इट इटैलिक, यू डोंट बॉदर. आपको सिर्फ क्या बताना है, व्हाट टू डू. यू डोंट हैव टू टेल हाउ टू डू. लाइक गेटिंग. जैसे SQL पढ़ा है, कुछ लोगों ने SQL भी पढ़ा रहेगा. शी माइट हैव नॉट लर्नड, बट नहीं, आपको भी नहीं हुआ है, आपको हुआ रहेगा. क्लियर? तो उसमें हम डेटाबेस से डील करते हैं. डेटाबेस मींस लार्ज स्टोरेज ऑफ रिकॉर्ड्स. बहुत सारे रिकॉर्ड स्टोर किए. अभी मुझे वो रिकॉर्ड्स पे काम करना है. मींस मुझे उसमें से कुछ रिकॉर्ड रिट्रीव करना है, कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करना है, डिलीट करना है. तो आई डोंट हैव टू टेल हाउ टू ऐड दैट रिकॉर्ड. मुझे सिर्फ बताना है कि इंसर्ट सो एंड सो, रिट्रीव या सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू पुणे. तो वो आपको वो पूरे रिकॉर्ड में से जितने भी पुणे वाले रिकॉर्ड है वो लाके देगा. बट वो कैसे लाके देगा ये हमें चिंता नहीं करना है. यू डोंट हैव टू बॉदर. देयर इज अ सिस्टम विच विल टेक केयर ऑफ इट. गेटिंग? तो यू जस्ट हैव टू टेल व्हाट टू डू, यू डोंट बॉदर अबाउट हाउ टू डू. ओके? तो नॉर्मली लैंग्वेजेस किस कैटेगरी में आते हैं, जैसे मैंने बताया, either the programming languages are imperative or either the programming languages are declarative. Imperative की खासियत क्या है? What is the speciality of imperative? They are algorithm based. Algorithm based में समझा ना, वहां हमें प्रोसीजर भी खुद बताना है, क्या करना है और वो कैसे करना है. उसका पूरा प्रोसीजर भी किसको बताना पड़ेगा? प्रोग्रामर को. गेटिंग? तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस लाइक C++ है, जावा है, वो आ जाता है. प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस लाइक C आता है, पास्कल है, काफी सारे हैं. पैरेलल प्रोसेसिंग है. अभी ये सब 4th ईयर में वगैरह इलेक्टिव पेपर्स में होता है पैरेलल प्रोग्राम. कुडा एंड ऑल, हैव यू हर्ड अबाउट कुडा? स्काला, कुडा एंड ऑल, दे ऑल कम अंडर हियर. फंक्शनल प्रोग्रामिंग है. गेटिंग? फंक्शनल प्रोग्रामिंग के भी काफी सारे लैंग्वेजेस है. देन वी कम लॉजिक प्रोग्रामिंग है, डिक्लेरेट डेटाबेस के है, दैट इज SQL, that is structured query language. Getting? They all come under which category? Declarative. So declarative means only what to do.
don't bother about how to do. Here you also have to tell how to do, क्या करना है और वो कैसे करना है. तो कैसे करना है मीन्स उसका पूरा अल्गोरिथम भी किसको बताना पड़ेगा, हमें बताना है. ठीक है. Then what we'll do is we will I hope you are clear with it. Don't worry, ये slides in a PDF form we will be giving you. Timely मैं इसको PDF में convert करके आपको देते जाऊंगा as your reference notes. तो अभी आपको सिर्फ क्लास में क्या करना है, जितने भी हम प्रोग्राम सॉल्व करेंगे ना वो ज्यादा से ज्यादा करो. डायरेक्ट लैपटॉप भी लेकर आ गए एंड साइमल्टेनियसली मेरे साथ सॉल्व किया तो वेल एंड गुड, हैंड्स ऑन मिल जाता है. नहीं करना है तो बुक में नोट डाउन. फिर जितने भी ट्रेस आउटपुट क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ बुक में अच्छे से सॉल्व करके रखो. अदरवाइज थेरोटिकल थिंग्स नो नीड टू नोट डाउन. लाइक करेक्ट. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, as we are going to learn Java, and Java comes under imperative, and imperative में भी वो object oriented category में आता है. तो हमें एक दो प्रोग्रामिंग के मेथोडोलॉजीज है. एक होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड कोडिंग एंड दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग. तो उसको पहले क्विकली डिफरेंशिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड, एंड देन वी विल डाइव इनटू फीचर्स ऑफ जावा. बट जावा के फीचर के पहले मैं हिस्ट्री ऑफ जावा भी बताने वाला हूं. एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ मेन बज़वर्ड्स है लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, वो भी क्विकली हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोसीजर ओरिएंटेड कोडिंग. डू यू हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट दिस? फर्स्ट ईयर में भी था. लाइक मैं पीपीएल में फर्स्ट ईयर आपको फर्स्ट ईयर एक सब्जेक्ट था ना, यू हैड पीपीएस है ना. तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में पाइथन में एक यूनिट में ये सब था. पाइथन का एक पेपर था ना फर्स्ट ईयर में, तो उसमें एक यूनिट था जिसमें आप लोगों ने ये सब प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज, उसमें ये मेथोडोलॉजीज में ये सब पढ़ा है. एनीवेज याद नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी विल जस्ट रिकॉल इट क्विकली. प्रोसीजर ओरिएंटेड कोडिंग में कैसे होता है? तो व्हाट दे डू इज, in this they consider that your problem is a very complex problem and you cannot write its solution as a single solution. So you visualize that problem made up of many small problem. Means क्या करना है, ऐसे सोच के चलो कि आपका प्रॉब्लम जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है. ठीक है. और इसका मैं अभी डायरेक्टली एक ही क्या नहीं लिख सकूंगा सॉल्यूशन. So they say divide that problem into smaller problem. Top down approach है, divide and conquer approach. Divide and conquer means एक बड़ा काम करने गए तो वो पूरा बड़ा काम एक ही पर्सन नहीं कर पाएगा, तो हम क्या करते हैं उसको छोटे छोटे कामों में डिवाइड करते हैं. तो वी विल स्प्लिट दैट प्रॉब्लम इनटू मेनी स्मॉल प्रॉब्लम. क्लियर? दिस रिफाइनमेंट कैन गो फर्दर. अभी छोटे प्रॉब्लम बनाए, फिर आपको पता चलता नहीं है छोटा प्रॉब्लम अभी भी छोटा नहीं है, तो उसको और डिवाइड कर सकते हो. इट कैन गो ऑन. ये जो छोटे प्रॉब्लम्स बने हैं इसके आप सॉल्यूशंस लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर्स. गेटिंग? अभी कहोगे प्रोसीजर मींस व्हाट? प्रोसीजर बोलो, फंक्शन बोलो, सब रूटीन बोलो, सब प्रोग्राम बोलो, सब प्रोग्राम. तो प्रोसीजर इज अ सब प्रोग्राम. Or you can say it is a code with some name and it is a reusable code. Means वो कोड आप चाहिए उतनी बार अपने प्रोग्राम में कहीं भी रिपीटेडली यूज कर सकते हैं. गेटिंग? तो बड़े प्रॉब्लम को किसमें डिवाइड कर देते हैं? इधर छोटे छोटे प्रॉब्लम में. फिर हर एक छोटे प्रॉब्लम का सेपरेट क्या लिखते हैं? प्रोसीजर. प्रोसीजर बोलो या सब प्रोग्राम बोलो, फंक्शन बोलो, सब रूटीन बोलो, मल्टीपल नेम्स है. लाइक गेटिंग? अभी ये जो छोटे छोटे फंक्शंस बने उसको एक अलग अलग टास्क दिया, इसको इसका अपना टास्क दिया, इसको अपना टास्क दिया, इसका अपना टास्क दिया, वो अपना अपना काम कर रहा है. एंड बाद में इसको कहीं तो मेन प्रोग्राम में क्या करो? यूज करो, कॉल करो. गेटिंग? तो इसका अप्रोच कैसे क्लियर है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम ही कैसे करना है? टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच में समझ में आया कि पहले हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकल पड़े. क्लियर? मराठी में बोलता है कि मोहिमेवर निघालो आपण. क्लियर? तर वी हैव स्टार्टेड विथ वन मिशन
of solving some problem, but we realize that problem is too complicated or too complex. I cannot solve this problem as a single problem. So I'm dividing that problem into smaller problem. And when I make this smaller problem, I write a separate sub program. सब प्रोग्राम में समझ रहा है ना, प्रोसीजर. तो मैं हर एक के अलग अलग क्या लिख रहा हूं, प्रोसीजर. इसके अंदर कोड रहेगा, बट वो कोड कुछ स्पेसिफिक काम कर रहा है, स्पेसिफिक टास्क. एंड फिर इनको कहीं तो मेन प्रोग्राम में आप लोग कॉल कर सकते हैं. तो ये इसका जनरल अप्रोच है. गेटिंग? अभी इस केस में ऐसे हो सकता है कि इसको अपना कुछ डेटा लगता है, तो वो अंदर लोकल वेरिएबल्स बनाएगा. इसको कुछ डेटा चाहिए तो वो लोकल वेरिएबल बनाएगा, अंदर कुछ लोकल वेरिएबल्स बनाएगा. बट ऐसा भी हो सकता है कि इन सबको कुछ डेटा शेयर भी करना है, कॉमन डेटा. मींस इसको और इसको दोनों को कुछ डेटा चाहिए जो कॉमन है दोनों में. तब फिर एक ही ऑप्शन रहता है, डेटा ग्लोबल बनाना पड़ता है. क्लियर? आई एम श्योर आपने पाइथन में भी ये पढ़ा है, लोकल, ग्लोबल, एनक्लोजिंग स्कोप. क्लियर? उसको लेग बी रूल कहते हैं, लेग बी. पाइथन में वो लेग बी कंसेप्ट है. सी प्लस प्लस जावा में वैसा रूल नहीं है. गेटिंग? तो इन सारे फंक्शंस को अपना अपना डेटा चाहिए तो उन्होंने लोकल बनाया, बट उनको कुछ डेटा क्या करना है, शेयर भी करना है. तो इन दोनों को अगर कुछ डेटा शेयर करना है तो एक ही ऑप्शन है, क्या बनाना पड़ेगा, ग्लोबल. फिर ये जो ग्लोबल डेटा है वो ये भी यूज करेगा, ये भी यूज करेगा. गेटिंग? तो ये अप्रोच समझ में है, बट इसमें ड्रॉबैक है, कुछ ड्रॉबैक. क्या ड्रॉबैक होता है? दैट इज व्हेन दे वांट टू शेयर द डेटा, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ग्लोबल. बट ग्लोबल का प्रॉब्लम क्या है? इट इज फ्रीली फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम. तो चांसेस है क्या कि ये ग्लोबल डेटा पूरे सिस्टम में कहीं भी एक्सेसिबल है, एनीवेयर एक्सेसिबल. एज इट इज ग्लोबल, इट इज एक्सेसिबल एनीवेयर. तो कैन देयर बी एनी एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन टू दिस डेटा? मींस गलती से वो डेटा चेंज हुआ, या पर्पसली भी चेंज हुआ, या अनरिलेटेड फंक्शन भी उसको एक्सेस कर रहा है. एक्चुअली इन दोनों को ही शेयर करना था, बट ग्लोबल रखने के कारण ये डेटा इसको भी क्या है, और ये फंक्शन इन दोनों से कुछ रिलेटेड नहीं है. समझो ऐसे कि इन दोनों को ही शेयर करना है, ग्लोबल रख दिया, बट फिर भी ये डेटा किसको एक्सेसिबल भी है, ये फंक्शन जो जिसका कुछ रिलेशन भी नहीं है, स्टिल कैन इट ऑल्सो एक्सेस इट? यस. तो इन शॉर्ट यहां इंपॉर्टेंस किसको दिया है, फंक्शंस को, डेटा को नहीं. Importance to the data is not given. Importance to the procedures is given. Getting? And real life mapping बहुत कम होता है. मैं real life mapping means anything which I see in the surrounding. Means मैंने surrounding में देखा है, like teacher है, student है, living things है, non-living things है, visible things है, invisible things है, date, time, stack, queue, anything, tree. I'm seeing anything in the real world that if I want to put it in programming, कर सकते हो, बट उतने परफेक्टली नहीं होता है. किस केस में? प्रोसीजर ओरिएंटेड. गेटिंग? तो प्रोसीजर ओरिएंटेड में काफी लैंग्वेजेस है. बहुत पुरानी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज लाइक पास्कल है. हैव यू हर्ड अबाउट पास्कल एंड ऑल? सुना है पास्कल? टुडे इट इज एब्सोल्यूट, मींस वो निकल गया है, मार्केट में से निकल गया है, वो यूज में नहीं है. बट आई रिमेंबर मेरा करियर पास्कल एंड फोर्ट्रन से शुरू हुआ. I started programming in Fortran first, then Pascal and all. तो Pascal बहुत old कौन सी language है? Procedure oriented. But C is also one of the example of procedure oriented. Getting? Python is a multi-paradigm language. याद रखना. Python में काफी अलग अलग paradigms supported है. मैंने Python में object oriented coding भी लिख सकता है and procedure oriented भी. PHP भी अगर आप लेते हो तो वो भी मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जावा स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सी स्ट्रिक्टली प्रोसीजर ओरिएंटेड है. बट अगर पाइथन लेता हूं तो पाइथन इज अ मल्टी पैराडाइम. कॉस्मोपॉलिटन होता है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि कॉस्मोपॉलिटन लोग हैं, तो वो दिवाली भी सेलिब्रेट करता है, क्रिसमस भी सेलिब्रेट करता है, ईद भी सेलिब्रेट, एवरीथिंग. व्हाई? बिकॉज दे फॉलो एवरीथिंग. लाइक करेक्ट. तो वैसा है. तो पाइथन वैसा है कि पाइथन में आप प्रोसीजरल कोड भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड भी लिख सकता है, एवरीथिंग. एनीवे, इन शॉर्ट में इसके बारे में क्विकली यहां बता देता हूं आपको. तो डिवाइड प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम या सब टास्क, एंड वो एक एक छोटे छोटे सब टास्क है,
उसको हम क्या कहेंगे? और प्रोसीजर्स. क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो, आई होप यू आर हियरिंग मी केयरफुली. तो जो भी आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करने जाना है, जिसके लिए मुझे प्रोग्राम लिखना है, तो सोचो एज इफ वो प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम नहीं, बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बनाओ. गेटिंग? जैसे रियल लाइफ में भी बहुत बार होता है ना, जैसे अभी घर में कुछ फंक्शन है, ऐसा सोचो. इन होम लाइक देयर इज अ मैरिज सेरेमनी, एंड फिर मैरिज में एक ही पर्सन है हमारे फैमिली में, और वो तय करता नहीं मैं ही करूंगा सब कुछ, तो वो सब फ्लॉप शो होने वाला है ना. उसने ही तय किया नहीं मैं ही कार्ड्स डिसाइड करूंगा, मैं ही वेन्यू डिसाइड करूंगा, मैं ही मेन्यू डिसाइड करूंगा, मैं खाने का मेन्यू क्या रहेगा वो भी मैं ही तय करूंगा, डेकोरेशन क्या रहेगा मैं ही तय करूंगा. तो सब काम वो एक ही पर्सन करने गया, तो ऑब्वियसली वो पूरा फंक्शन फेल होता है. बट उसने तय किया कि नहीं मैं काम डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कि है फंक्शन, मैं कंट्रोलिंग हूं नो डाउट, तो अपने प्रोग्राम में भी एक मेन होता है जो कंट्रोलिंग है. तो आई एम द कंट्रोलिंग बट आई डिस्ट्रीब्यूट इट. तो वो कुछ लोगों को बोलेगा कि नहीं तुम लोग सिर्फ इनविटेशन का ध्यान देखो, तुम लोग सिर्फ डेकोरेशन का देखो, तुम लोग सिर्फ केटरिंग का देखो. फिर उनको वो जो काम दिया है वो उतना ही काम करेंगे. तो विल द वर्क बिकम वेरी वेल? यस और नो? अबे आजकल क्या करता है, फैमिली में कोई जो मेन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करता है ना. आजकल लोगों के पास बहुत सारा पैसा, इंडिया में बहुत पैसा है, लाइक क्लियर. तो व्हाट दे डू इज दे डायरेक्टली हायर अ इवेंट मैनेजमेंट. सी स्मार्ट, लाइक गेटिंग. तो उसको इमीडिएटली क्लिक हुआ कि इमेज इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज है, उनको हायर किया तो उनके लोग है ही ना, वो सब देख लेता है. तो उनके पास भी टीम्स होता है ना, one team which will take care of invitation, one team which will take care of decoration, one team which will take care of food and all. तो काम सब बेस्ट हो जाता है ना. तो वैसे ही है इधर भी वही है कि एक टास्क को किस में डिवाइड करना है, सब टास्क. ओके, एंड फिर ईच सब टास्क के क्या लिखना है, प्रोसीजर्स. आई होप यहाँ ये पिक्चर आपको क्लियर हो रहा है कि फंक्शंस लिखे है, फंक्शंस लिखे है, फंक्शंस लिखे है. इन सारे फंक्शन को अपना अपना डेटा भी रहेगा, दैट इज लोकल डेटा. और इन फंक्शंस को कुछ शेयर करना है तो एक ही ऑप्शन है, क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल. देखो इधर ग्लोबल डेटा. बट ग्लोबल का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ये शेयर हो रहा है इन दोनों में, बट प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल होने के कारण वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेसिबल है. तो इज इट एक्सेसिबल टू एनी अनरिलेटेड फंक्शंस ऑल्सो? ऐसे फंक्शन जिसका कोई वो डेटा से संबंध नहीं है, उनको भी वो डेटा क्या है, एक्सेसिबल है. मीनिंग डेटा को क्या नहीं दिया है, इंपॉर्टेंस. इंपॉर्टेंस इज गिवन टू फंक्शन. अप्रोच कैसे है, टॉप डाउन. बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करते जाना है. तो डेटा टू बी शेयर्ड बाय रिलेटेड फंक्शन इज केप्ट ग्लोबल. एंड ग्लोबल डेटा मीन्स व्हाट, फ्रीली एक्सेसिबल एनीवेयर. तो इंपॉर्टेंस टू द डेटा इज लेस. एंड रियल वर्ल्ड मैपिंग थोड़ा इतना इजीली नहीं होता है. रियल वर्ल्ड मींस मैंने रियल वर्ल्ड से टीचर लिया, स्टूडेंट लिया, एम्प्लॉय लिया, कस्टमर लिया, बिल लिया, टेबल लिया, चेयर लिया, तो उसको मुझे प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना है. रियल वर्ल्ड से बाइक लिया, कार लिया, एंड दैट आई वांट टू पुट इट इन प्रोग्रामिंग मॉडल. तो लिटिल डिफिकल्ट. यू कैन डू इट बट नॉट विद दैट ईज, लाइक गेटिंग. एग्जाम्पल्स देखो, मैंने बेस्ट एग्जाम्पल दिए हैं. ये सारे लैंग्वेजेस में काम किया है. आई हैव डन वर्क इन नियरली ऑल. जैसे मैंने मेरा करियर ही शुरू किया था विथ फोर्ट्रन एंड पास्कल एंड ऑल. पास्कल मींस किसी पास्कल पर्सन ने नहीं निकाला है. एक्चुअली पास्कल लैंग्वेज इज डिजाइंड बाय वन पर्सन कॉल्ड निकोलस व्रिथ. निकोलस व्रिथ. But he was very much fascinated with Pascal's work. And Pascal is a mathematician. Pascal triangle था, याद है? Binomial coefficients वगैरह किया था कभी? No, don't remember. 12th का मैथ्स नहीं याद आता है ना अच्छे से. वहाँ था, याद है? A plus B raised to n. Do you remember? तो वो 0 रहेगा तो 1 आता है, फिर 1 रहेगा तो 1 1 आता है, 2 रहेगा तो 1 2 1 आता है. रिमेंबर नो, ये एडिशन ही होता है ना, ये वन एज इट इज, फिर इन दोनों का एडिशन, एडिशन अगेन, ये वन एज इट इज, फिर 4 6 4 1, ये पास्कल ट्रायंगल. तो दैट मैथमेटिशियन हुज नेम वाज पास्कल, उनके काम से बहुत फैसिनेटेड थे निकोलस व्रिथ. देयरफॉर ही डिजाइन्ड अ लैंग्वेज बट डेडिकेटेड इट टू हुम, टू पास्कल. एंड इसलिए फिर लैंग्वेज को नाम दिया
पास्कल। तो ऐसे बहुत लैंग्वेजेस की हिस्ट्री में बहुत बार बताते जाऊंगा, डोंट वरी, बट बहुत लोगों को वो इंटरेस्ट नहीं रहता है ना। हिस्ट्री मीन्स बोरिंग रहता है ना। स्कूल डेज में भी हम लोगों को हिस्ट्री ये सब्जेक्ट काफी बोरिंग ना, राइट और नो? ठीक है, बट देर आर सम यूट्यूबर्स हु आर अर्निंग in crores only on telling about history. Huh? He's a useless man. I don't follow him. Like, clear? I don't follow him. Openly I tell. Clear? I don't follow him. There are many other. ऐसे काफी है, क्लियर, जो सिर्फ हिस्ट्री बताने का काम कर रहा है. They are telling about the generations and they are earning so much, like, correct? हाँ, तो I think she is follower of Dhruv Rathi. हाँ हाँ, ठीक है, एनीवेज हमें शी इज देयर विद दैट, कनेक्टेड विद दैट सोशल मीडिया एंड व्हाट इज क्लियर. ओके, एनीवेज, तो फोर्ट्रन, फोर्ट्रन इज फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन. फॉर्मूला ट्रांसलेशन वो ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए बनी गई थी, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. आपको कभी वो था न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर सब्जेक्ट कभी, जिसमें हम एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए मेथड था, वो था ना ट्रेपेजॉइड मेथड, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने वो सिम्पसन्स मेथड, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो एक रंगे कुट्टा मेथड था ना, याद है? तो वो जो हमारे मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स है उनको सॉल्व करने के लिए ये लैंग्वेज बहुत स्पेशली बनी थी, फोर्ट्रन. कोबॉल ये बनी थी सिर्फ फाइल हैंडलिंग के लिए. फाइल्स के ऊपर जब काम करना है ना तो कोबॉल बेस्ट था. गेटिंग? तो ऐसे काफी लैंग्वेजेस है. ये सब किस कैटेगरी में आता है? प्रोसीजरल. गेटिंग? देन वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या खासियत है वो बताना है. गेटिंग? बट मुझे लगता है प्रोसीजर ओरिएंटेड का क्लियर है, कैसे टॉप डाउन अप्रोच है, बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में ब्रेक, फिर हर एक का अपना अपना फंक्शन लिखना है, हर एक के अपने अपने लोकल डेटा रहेगा, उनको कुछ शेयर करना है तो ग्लोबल है, बट ग्लोबल है तो वो फ्रीली फ्लो होता है. अनरिलेटेड फंक्शंस को भी वो क्या है, एक्सेसिबल है, इसलिए डेटा को इंपॉर्टेंस कम है. गेटिंग? रियल वर्ल्ड मैपिंग लेस है. प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या कंसेप्ट है वो देखो. इस प्रोसीजर ओरिएंटेड इज बेस्ड ऑन टू इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, दैट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट. क्लास एंड ऑब्जेक्ट. बट वो क्लास ऑब्जेक्ट क्या है वो शॉर्ट में बताता हूं, एंड फिर आगे जाके हम उसको और डिटेल में सीखने वाले हैं. क्लास क्या, ऑब्जेक्ट क्या, एवरीथिंग. यहां क्या प्रोविजन है वो देखो. हियर दे से यू कैन ग्रुप रिलेटेड फंक्शंस इनटू कंपार्टमेंट्स. जितने भी रिलेटेड फंक्शंस है, गेटिंग, उसके आप लोग कैप्सूल्स बना सकते हैं, जो किसमें नहीं बना सकते थे, प्रोसीजर. इसलिए क्या हो रहा था, प्रोसीजर में जो अनरिलेटेड डेटा है वो भी एक्सेसिबल था ना. अभी इन दोनों को शेयर करना है, ग्लोबल रखा, बट एक तीसरा फंक्शन है वो भी उसको एक्सेस कर पा रहा था ना, क्योंकि वो ग्लोबल रखा था, राइट? वैसा इधर नहीं है. यहां क्या प्रोविजन दिया है, यू कैन मेक कंपार्टमेंट्स ऑफ रिलेटेड फंक्शन. मींस ये कुछ फंक्शंस है जो रिलेटेड है, इन तीनों को कुछ डेटा शेयर करना है, वो डेटा इधर रख सकता है, बट वो ग्लोबल टू द होल प्रोग्राम नहीं, ग्लोबल ओनली टू दैट कंपार्टमेंट. क्लियर? तो ये तीन फंक्शंस रिलेटेड थे, तो उनका मैं ग्रुप बना के उसका एक कंपार्टमेंट बना सकता हूं या कैप्सूल बना सकता हूं. कुछ और फंक्शंस है, क्लियर, इनका मैं अलग सा कैप्सूल बना सकता हूं. और इन चारों को ही जो डेटा क्या करना है, शेयर, वो इधर रख दिया. बट जो ग्लोबल रखा है वो ग्लोबल थ्रू आउट सिस्टम नहीं, ग्लोबल ओनली टू दैट कैप्सूल. उतने कैप्सूल के लिए वो डेटा ग्लोबल है. मींस उस कैप्सूल के अंदर जितने फंक्शंस है उतने ही फंक्शंस ये डेटा को क्या कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे. गेटिंग? मींस ये डेटा पूरे सिस्टम में एक्सेसिबल नहीं है. वो डेटा सिर्फ किधर एक्सेसिबल है, उतने ही फंक्शंस जो उस कैप्सूल के अंदर है. गेटिंग? तो ऐसे कंपार्टमेंट्स बनाने का फैसिलिटी किस में आ गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. एंड इन कंपार्टमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, क्लास.
गेटिंग? एंड इन कंपार्टमेंट्स के जब हम लोग कॉपीज बनाते हैं, कॉपी, ऐसे याद रखो कि हमारे पास एक डिजाइन है एंड वो डिजाइन के प्रोडक्शन है, डिजाइन एंड द प्रोडक्शन। क्लियर? सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, घर में मॉम कभी अभी जैसे समर में पूरी एंड अमरस का रोज ही रहता था, है ना? तो पूरी बनाते समय वो एक वाटी यूज करती है ना, वो एक कटोरी यूज करती है। तो वो डो जो भी रहेगा वो डो को रोल करके एक बड़ा रोटी बनाती है एंड फिर वो कटोरी ऐसे प्रेस करते जाती है एंड फिर एक एक पूरी बनते जाती है एंड शी फ्राई एंड देन यू गेट इट। तो वो जो बड़ा प्लेट भर के जो पूरी बने हैं वो कॉपीज है। और वो कॉपी बनाने के लिए उसने एक मोल्ड यूज किया था ना, एक टेम्पलेट। क्या यूज किया था? वो एक कटोरी। तो वो कटोरी जो बनी वो क्लास, एंड वो कटोरी से जितने भी ढेर सारे 100 200 क्या बने थे, पूरियां बनी थी, वो ऑब्जेक्ट है। गेटिंग? तो ये क्लास है और फिर इसके क्या बनाने के? कॉपीज। एंड फिर वो कॉपीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। वो कॉपीज को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। गेटिंग? और डिटेल आने वाला है और इलेबोरेट होगा। अभी सिर्फ टाइमिंग के लिए क्या याद रखो कि इस प्रोग्रामिंग में क्या दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या किया जाता है? प्रॉब्लम सॉल्व करते समय वो जो भी प्रॉब्लम्स के फंक्शंस है उसके हम क्या कर सकते हैं? एनकैप्सुलेशन, कंपार्टमेंट, ग्रुपिंग, एंड जो ग्रुप्स बने हैं उसमें रिलेटेड फंक्शंस डाल देंगे। एंड फिर इन रिलेटेड फंक्शंस को जो डेटा शेयर करना है वो ग्लोबल तो रख दिया, बट ग्लोबल थ्रू आउट द सिस्टम नहीं, ओनली फॉर दैट कैप्सूल। एंड वो कैप्सूल को हम क्या कहेंगे? क्लास। एंड फिर इस क्लास से हम क्या कहेंगे? कॉपीज बनाएंगे। एंड जो कॉपीज बनता है वो ऑब्जेक्ट्स। गेटिंग? तो जैसे कोई एक मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसने एक कार डिजाइन किया, तो उसने उसका पूरा लेआउट बना दिया है कि भाई व्हील्स कैसे रहेंगे, बोनेट कैसे ओपन होगा, एवरीथिंग। फिर उसका जो डिजाइन है वो प्रोडक्शन पे जाएगा एंड प्रोडक्शन वाले लोग रोड पे हंड्रेड्स ऑफ कार्स बना के लाएंगे। तो रोड पे जो हंड्रेड्स ऑफ कार्स है वो कॉपीज है, वो ऑब्जेक्ट है। बट वो बनाने के लिए वो इंजीनियर ने जो एक डिजाइन बनाया था वो क्या है? क्लास है। गेटिंग? तो इसका मेथोडोलॉजी इस तरह से है कि यहां प्रोग्रामिंग कैसे होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैसे काम किया जाएगा? कैप्सूल्स ऑफ रिलेटेड फंक्शंस, जितने भी रिलेटेड फंक्शंस है उसका कैप्सूल। एंड वो कैप्सूल के अंदर कुछ डेटा रखा है वो उस कैप्सूल में शेयर होगा। एंड एक बार कैप्सूल बने, दैट इज क्लास, फिर उसके हम क्या बनाएंगे? कॉपीज। एंड फिर वो कॉपीज एक दूसरे के साथ क्या कर सकता है? इंटरैक्ट। गेटिंग? तो इसमें इंपॉर्टेंस किसको दिया है? फंक्शंस को तो है ही है, बट डेटा को भी इंपॉर्टेंस दिया है। डेटा फ्रीली थ्रू आउट द सिस्टम फ्लो हो रहा है क्या? नहीं। और इसमें बॉटम अप अप्रोच है। अप्रोच कैसे? क्लियर है? बॉटम अप मीनिंग क्या करता है इधर कि जिस किसी सिस्टम के लिए आपको प्रोजेक्ट बनाना है, गेटिंग, तो वो सिस्टम के एक एक एंटिटी लेते जाना है। जैसे अगर मुझे बनाना है, यू आर अवेयर अबाउट इन्वेंटरी सिस्टम? ओके, ठीक है। अज्यूम करो लाइक पेरोल भी नहीं आएगा, ठीक है। मार्कशीट जनरेशन, मार्कशीट जनरेशन तो एक कॉमन है, इतना तो समझ में आना चाहिए। तो मार्कशीट जनरेशन में कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर्स है? सोचो। फैकल्टी एक, ठीक है, माने टीचर एक है, फैकल्टी। ओके, थोड़ा बाहर जा रहे हो, अंदर नीचे आ जाओ। और हाँ, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसको इतना वैसे नाम के लिए रहता है। क्लियर? तो फैकल्टी एक है, शी टोल्ड। हमें मार्कशीट जनरेशन करना है, तो उसमें वो सब्जेक्ट कौन सिखा रहा है? वो एक, दैट इज फैकल्टी। देखो मैं बोलते समय और एक एंटिटी बोल गया। हाँ, वो पर्सन हो गया, बट वो सिस्टम में कौन कौन है, मैंने वो सिस्टम में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको रखनी है। जैसे आपको फैकल्टी की इंफॉर्मेशन रखनी है, गेटिंग? तो वो तो हो गया। इधर मैंने एक कैप्सूल बनाया, किसके लिए? फैकल्टी। तो फैकल्टी के ऊपर मुझे जो जो काम करना है, क्लियर, उसके फंक्शंस और उसका कॉमन डेटा, वो हो गया। और नहीं आएगा कुछ मार्कशीट जनरेशन में? सब्जेक्ट आएगा, भूल गए?
सब्जेक्ट आएगा ना, तो सब्जेक्ट का कोड आया, सब्जेक्ट का नेम आया, उसके मिनिमम मार्क्स कितने, मैक्सिमम मार्क्स कितने, थियरी के कितने, प्रैक्टिकल के कितने, ये सब आ गया ना। एंड फिर उसका भी डेटा, एंड यहाँ क्या आएंगे, फंक्शंस। में फंक्शंस में हम लोग अलग अलग, लाइक एक्सेप्ट डेटा, डिस्प्ले डेटा, गेटिंग। सब्जेक्ट ही आएगा, फैकल्टी आएगा, और हाँ अभी आ गया, अभी तेरा दिमाग लाइन पे आ गया है ना, क्लियर। तो स्टूडेंट आएगा, राइट। फिर मेन मार्कशीट आएगा, जिसमें ये स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए हैं, तो उनका कनेक्शन रहेगा ना, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट। तो वो कनेक्शन भी तो आएगा। एज शी इज इन फोर्थ ईयर, तो आई गेस नहीं अभी नहीं रहेगा ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग एंड डिजाइन का एक पेपर हाँ हो गया ना वो सब्जेक्ट, माइट बी नोइंग। फिर उसमें वो यूएमएल डायग्राम्स एंड ऑल, यू नो इट, क्लियर। तो ऑल दैट थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज को फेस करते समय ना, ये यूएमएल डायग्राम्स, फिर कैसे वो सब अलग अलग आर्ट डायग्राम्स है, लाइक एक्टिविटी डायग्राम है आपका, यूज केस डायग्राम है, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द कैंपस राउंड्स, लाइक क्लियर। एनीवे, तो यहां कौन आ गया, मार्कशीट आ गया, ठीक है। तो ये सब एक एक एंटिटी लेते जाना है। मैं जब सिस्टम बनाने जाओगे ना, तो डायरेक्टली टॉप डाउन अप्रोच नहीं। इनका कहना है कि ये सिस्टम में जो एक एक रोल प्लेयर है, उसका इंप्लीमेंटेशन करो, उसका डेटा उसके फंक्शंस, उसका डेटा उसके फंक्शंस, एंड बाद में इसको क्या करो, यूज में लाओ बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। इनका ऑब्जेक्ट बना के फिर मेन प्रोग्राम में इसको क्या करना है, यूज में लाना है, लाइक गेटिंग। तो अप्रोच कैसे है, ये क्लियर है। अभी इसमें बताओ, रियल वर्ल्ड मैपिंग बहुत इजी हो गया। रियल वर्ल्ड से जो कुछ लेते हो, उसका डेटा उसके बिहेवियर, उसका डेटा उसके बिहेवियर्स, लाइक गेटिंग, ठीक है। तो अभी मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया है, वी विल बी लर्निंग मोर डिटेल अबाउट इट, ठीक है। इनिशियली थोड़ा सा थेरोटिकल कंसेप्ट्स होते हैं, तो डोंट फील टायर एंड ऑल, क्लियर। जैसे जैसे हम और आगे मूव ऑन करेंगे, इनिशियली थोड़ा थेरोटिकल कंसेप्ट्स है, बट वो भी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, दैट आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ वी विल गो थ्रू दिस पॉइंट्स, ओके। रिप्रेजेंट प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको क्या करना है, सॉल्व यूजिंग दिस अप्रोच, तो इसमें कंसेप्ट क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास इन शॉर्ट समझ में आया ना, जितने भी रिलेटेड क्या है, फंक्शंस है, उन फंक्शंस का कैप्सूल, जितने भी रिलेटेड है, तो उनका एक कैप्सूल बनाना है, और इस कैप्सूल में जितने फंक्शंस हैं उनको कुछ डेटा शेयर करना है, तो वो ग्लोबल। बट ग्लोबल पूरे सिस्टम को या सिर्फ उतने कैप्सूल को, ये इसकी मेथोडोलॉजी है, गेटिंग। तो ऐसे क्लासेस बनाते जाओ अपने सिस्टम के। जैसे अभी मुझे सिस्टम क्या बनानी थी, मार्कशीट जनरेशन की एक सिस्टम बनानी है। तो मार्कशीट जनरेशन की सिस्टम बनाते समय मैंने क्या क्या स्टडी किया, कि इसमें एक फैकल्टी का डेटा लगेगा, स्टूडेंट का डेटा लगेगा, सब्जेक्ट का डेटा लगेगा, फिर वो स्टूडेंट ने वो सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, तो वो एक मार्क्स लगेगा। ऐसे मैंने एक एक समझ लिए, और ये एक एक के मैंने क्या बनाए, मैंने कैप्सूल्स बनाए। फिर मैंने उसके क्या बनाए, कॉपीज बनाए, दैट इज ऑब्जेक्ट। एंड फिर वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, ठीक है। थोड़ा थेरोटिकल है, तो अभी में भी इतना क्लियर नहीं हो रहा है, बट जैसे जैसे जावा में क्या लिखना शुरू करोगे, प्रोग्राम्स, एंड जब जावा में आप खुद के क्लासेस डेवलप करोगे, फिर उसके ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, फिर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, फिर कैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट, तो वो ऑटोमेटिक क्लियर होने लगता है। एंड कुछ लोग अगर एकदम ध्यान से सुनते हैं ना, तो रिलेट करते हैं, हाँ ये पर्सन ने फर्स्ट लेक्चर में ये थेरोटिकल, ये कैसे अभी इधर रिलेट हो रहा है, यू विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली व्हाट, मैपिंग, लाइक गेटिंग, ओके। यहां क्या करना है, कैप्सूल्स बनाना है, किसके, रिलेटेड फंक्शंस और उनका रिलेटेड डेटा, एंड उस कैप्सूल को ही हम क्या कहेंगे, क्लास, ओके। यहां मैंने पिक्टोरियली दिखाया है, इफ यू कैन सी इट, क्लियर। तो कैप्सूल में क्या है, फंक्शंस, और वो फंक्शन जो उनको क्या करना है, शेयर, गेटिंग। फंक्शन शेयर नहीं, फंक्शन को जो डेटा शेयर करना है, तो वो उधर डेटा रखा है, बट वो डेटा पूरे सिस्टम में एक्सेस हो रहा है या ओनली फॉर दैट कैप्सूल,
ये डेटा सब सिस्टम में फ्लो हो रहा है या उतने कैप्सूल में ही वो डेटा एक्सेस है? उतने कैप्सूल। तो इसलिए इंपॉर्टेंस किसको मिल गया? डेटा को। इज देयर अ डेटा सिक्योरिटी? इज डेटा फ्रीली फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम एनीवेयर? नो। तो इंपॉर्टेंस किसको भी मिल गया? डेटा को भी मिल गया। गेटिंग? एंड फिर ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ क्या करता है? इंटरैक्ट वाया दैट फंक्शंस। तो फंक्शंस के थ्रू ये इंटरैक्ट हो गए। गेटिंग? रियल वर्ल्ड मैपिंग वेरी इजीली कैन बी डन। ठीक है? एग्जाम्पल्स देखो इधर, स्मॉल टॉक है। हैव यू हर्ड अबाउट स्मॉल टॉक? सिम्युला नहीं, लैंग्वेजेस। ठीक है, एनीवे सिम्युला इज फ्रॉम सिम्युलेशन। हैव यू हर्ड अबाउट सिम्युलेशन? सिम्युलेशन ये टर्म सुना रहेगा हमें, एज शी इज फ्रॉम ईएनटीसी तो थोड़ा बहुत नॉलेज है। सिम्युलेशन मीन्स एनीथिंग विच इज इन द रियल वर्ल्ड implemented in terms of software। जो कुछ आप रियल वर्ल्ड में देखते हैं उसको जब हम सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सिमुलेशन। सिमुलेशन का बेस्ट एग्जांपल, कभी मारुति ड्राइविंग स्कूल गए हैं तो पहले 2-3 दिन वो सिमुलेटर पे ही सिखाते हैं, है ना? मैं जिन्होंने ऑफिशियल उनका ही ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया रहेगा तो पहले 2-3 दिन वो सॉफ्टवेयर पे ही बिठा देते हैं एंड वो सॉफ्टवेयर हमें ऐसे फील करवाता है कि रियली हम कार चला रहे हैं, राइट? एंड वो कार चलाते समय प्रॉपर ऐसे बाहर से बारिश आ रहा है, किसी ने पत्थर फेंक दिया, पूरा इफेक्ट आता है। मीन्स अगर किसी ने पत्थर फेंका तो आप कैसे हैंडल करोगे? रेन आने लगा तो कैसे वाइपर ऑटोमेटिक शुरू करोगे? तो वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर क्या इफेक्ट देता है, एज इफ आप रियली क्या चला रहे हैं? कार चला रहा है। एविएशन वगैरह के लोग रहते हैं ना, जो पायलट बनने जाता है, तो पायलट बनने तो पहले दिन ही एरोप्लेन हाथ में नहीं देता है ना, तो उन्होंने उनको क्या दिया रहता है? वो एरोप्लेन का एक सिम्युलेटर होता है। वो सिम्युलेटर फील करवाता है कि एज इफ यू आर ड्राइविंग एरोप्लेन। गेटिंग? तो ऐसे काफी सॉफ्टवेयर्स है जो क्या करता है? सिम्युलेट। तो ऐसे सिम्युलेशन के लिए ये लैंग्वेज आया था। ये लैंग्वेज स्पेशली बनाया गया था किसके लिए? सिम्युलेशन के लिए। फिर सी प्लस प्लस है, जावा है, सी शार्प है। हैव यू हर्ड अबाउट सी शार्प? जिनको डॉट नेट फ्रेमवर्क भी रहेगा तो दे लर्न दिस ऑल्सो। जो माइक्रोसॉफ्ट का जो पूरा डॉट नेट फ्रेमवर्क है तो उसमें काफी लोग क्या सीखते हैं? सी शार्प। गेटिंग? बट जनरली इंजीनियरिंग में नहीं रखता ये, क्योंकि इंजीनियरिंग का जो कोर्स बना है ना, इंजीनियरिंग या बीएससी कंप्यूटर साइंस, पुणे यूनिवर्सिटी कहता है सब कुछ ओपन सोर्स पढ़ो, ओपन सोर्स के प्रोडक्ट्स। तो इसलिए अपने कोर्स में बहुत बार किसको नहीं रखा रहता है? माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स। देखो अपने 4 साल के इंजीनियरिंग में डेटाबेस भी रखा रहेगा ना, तो ओपन सोर्स डेटाबेस लाइक माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेस, मोंगोडीबी वो रखेंगे। दे वोंट कीप सीक्वल सर्वर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स फ्री नहीं होता है ना, ओपन सोर्स भी नहीं है एंड फ्री भी नहीं है, वो लाइसेंस्ड वर्जन्स होता है। तो अपने पुणे यूनिवर्सिटी ने ऐसा रिकमेंड किया है कि 4 साल क्या सीखने का? ऑल ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स। गेटिंग? तो इसलिए हमें ओएस भी वही यूज करने के लिए बोलते हैं ना, लाइक फेडोरा या रेड हैट, उबंटू वगैरह वो यूज करो। ओके, एनीवेज, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यस और नो? क्लियर? ऑनलाइन वाले हैं वो लोग भी जरा कंफर्मेशन दे सकते हैं। Meantime, in pandemic, I used to teach only online. So that time I had habit only every time. Clear? कि पूछना पड़ता था, You're hearing me? फिर बताओ। ठीक है? हाँ, तो गुंजन and one more person is there. ठीक है? Anyways, online का यही प्रॉब्लम होता है। There is no eye contact, right or no? तो वो साइड पर्सन क्या कर रहा है पता नहीं, right? Okay. Now we will come to buzzwords. ठीक है? उसको हम कहते हैं जावा बजवर्ड्स। जावा बजवर्ड्स नहीं कह सकता है, ओपी के बजवर्ड्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बजवर्ड्स, इंपॉर्टेंट बजवर्ड। जैसे तुम्हारे जनरेशन के बजवर्ड्स होते हैं ना, लाइक तुम लोग जेनजी वाले हैं ना, जेनजी। हम लोग अलग जनरेशन के हैं, तो तुम लोग का जेनजी का वोकैबुलरी अलग ही है, आपका शब्दकोश कुछ अलग ही है ना, यप, गॉन एंड ऑल दैट थिंग्स। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स है। गेटिंग? तो इनको हमें डिस्कस करना है। इसमें से पहले हमें क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये डिस्कस करेंगे।
एंड फिर ये सब चीजें बाद में जावा में अप्लाई होगा, प्रॉपरली प्रोग्रामिंग आएगा, एक प्रॉपर असाइनमेंट्स आएंगे इनहेरिटेंस पे, प्रॉपर क्लासेस ऑब्जेक्ट्स पे मैं आपको अबंडेंट ऑफ क्या दूंगा, प्रोग्राम्स, क्लियर, एंड आई विल मेक योर प्रोग्रामिंग वेरी वेल। मुझे कोशिश करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आया तो उसको सॉल्व करने आना चाहिए, गेटिंग? तो इसमें से एक फीचर हमें देखना है, ठीक है? बट टुडे व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टॉप इन 1 hour ओनली, एंड कल फिर हम लोग थोड़ा और लेक्चर लेने वाला है। मैं फ्रॉम टुमारो इट विल बी 1.5 hour कंप्लीट शेड्यूल, ठीक है? तो आज फर्स्ट डे है, थोड़े और स्टूडेंट ज्वाइन होने हैं इसलिए, बट अभी नेक्स्ट सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज क्लास, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये फीचर्स देखेंगे। एंड देन आई विल टेल यू शॉर्ट हिस्ट्री अबाउट जावा, एंड देन फीचर्स ऑफ जावा देखना है, एंड फिर हम लोग फर्स्ट जावा प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ों के लिए पेशेंस लगता है, यू नीड टू हैव पेशेंस, हियरिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, सब कुछ ले, ठीक है? कुछ लोगों को एक एक जगह पे उतना देर बैठने का भी पेशेंस नहीं होता है ना। आई टोल्ड यू ना, जनरेशन अलग है ना, राइट? अभी इसके आगे वाला, मैं तुम्हारे आगे वाला जनरेशन का तो सोचो ही मत, लाइक, ठीक है? एनीवेज, तो कल हम लोग ये फीचर्स देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑल्सो, लाइक, ठीक है? तो आज के लिए मैं यहीं रुकता हूँ।